Hello everyone, good morning, welcome back. So let us start question number 14 of class 12 given in page number 249, and of course the chapter is chapter 5, retirement of a partner, and this is the question number 14 from Shivlal accountancy book. Let us begin with the question. Sangeeta, Saroj and Shanti are partners sharing great profit and loss in the ratio 2, ratio 3, ratio 5. There are the three partners and their ratios are given 2, 3 and 5. Goodwill appearing in the book is rupees 60,000. Sangeeta retired and goodwill is valued 90,000. Remaining partners shares future profit equally. Record necessary journal entry. So this question is little bit different from the previous question that we did, because in this question we can see two goodwills are given, and the question which we previously we have done, in that question only one goodwill was given, but in this question we can see two goodwill. So let us see how to solve this type of questions. So first of all, what we have to do, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कैलकुलेट द गेनिंग रेशियो. ये हमें कैलकुलेट करना ही पड़ेगा. क्यों करना पड़ेगा? टू distribute the goodwill. It is not mentioned in the question that calculate the gaining ratio, but still we have to calculate the gaining ratio to calculate goodwill, and two ratios can be seen. अब आपको लग रहा होगा there is only one ratio, two ratio, three ratio, five, एक ही ratio दी है, दूसरी ratio कहाँ है? But see in the last line, रिमेनिंग पार्टनर शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इक्वली. रिमेनिंग पार्टनर्स जो बच गए हैं पार्टनर्स आफ्टर द रिटायरमेंट, दे विल शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इक्वली. सो लेट अस स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू find the gaining ratio. So the formula for the gaining ratio is new minus old. Three partners are there. Sangeeta, I am writing in short, Saroj and Shanti. Three partners are there, and the new ratio is future profit. They decided to share future profit. जो future का profit होगा that is the new ratio, and in the second last line it is given remaining partner shares future profit equally. तो retire कौन हो रहा है? संगीता रिटायर्ड. फर्स्ट पार्टनर्स इज रिटायरिंग. इसको क्रॉस कर देते हैं, पुट अ क्रॉस ऑन द संगीता. एंड द रिमेनिंग पार्टनर्स डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इक्वली. जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं दे डिसाइडेड टू शेयर इक्वली मीन्स 1/2 एंड 1/2. 1/3 1/3 नहीं होगा क्योंकि एक पार्टनर रिटायर होने के बाद ये रेशियो बनी है. This ratio has been created after the retirement of a partner. So there were the three partners and the one partner has been retired. So after the retirement only two left. So the ratio will be 1/2 and 1/2. And the old ratio is 2, 3 and 5. Old ratio is given 2, 3 and 5. So first one is 2, second one is 3 and the last one is 5. And the total of 2, 3 and 5 is, so the new ratio is 3/10 and 2/10. Now do the cross multiplication. 10 1s are 10, 2 3s are 6 and 2 10s are 20. In the same way this one, 10 1s are 10 and 5 2s are 10 and 2 10s are 20. Now subtract it. 10 minus 6, 10 minus 6 4 and upon 20, and the last one is 10 minus 10 0, 0/20. So this we find the gaining ratio. Now the gaining ratio is 4/0. 1 is nil. Shanti's share is nil, 0. So the gaining ratio is only 4. Answer is only 4. Gaining ratio is 4/20. Formula for the gaining ratio is new ratio minus old ratio, and the new ratio is future profit equally 1/2 and 1/2. And the old ratio is 3/10 and 5/10. After solving, means after doing the cross multiplication, first we got 4/20 and the second we got 0/20. So the second one we got nil and the first one is 4/20. Now coming to the journal entries. Now let's see how to do the journal entry. This is the line for the journal entry: date, particulars, LF, amount debit and amount credit, and heading journal entry. So in the journal entry, the partner who is getting retired, यहाँ पे three partners are Sangeeta, Saroj and Shanti are the three partners, and one partner is retired from the firm, means Sangeeta is retiring from the firm. So the partner that is retiring will be written in the to side, means जो रिटायर हो रहा है वो अपना शेयर दे के जाएगा. और जर्नल एंट्री में मैंने एक रूल बताया है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर. जो दे रहा है वो क्रेडिट, जो ले रहा है वो डेबिट. और हमको यहाँ पे क्या याद रखना है, जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसको 2 में लिखना है. तो यहाँ पे रिटायर कौन हो रहा है? संगीता रिटायर हो रही है, तो संगीता को 2 में लिख देंगे. 2 संगीता. जो भी पार्टनर रिटायर होगा उसको 2 में लिखेंगे. ओके. एंड द रिमेनिंग पार्टनर विल बी डेबिटेड. जो बचे हैं पार्टनर्स उनको डेबिट कर देंगे. तो बच्चे कौन है? सरोज एंड शांति. सरोज अकाउंट डेबिटेड
and Shanti's account debited. Saroj account debited, Shanti's account debited to Sangeeta. This is the journal entry. Okay, I think journal entry is clear. जो भी रिटायर हो रहा है उसको 2 में लिखना है. The remaining partners will be debited. Now how to fill the amount? Amount कैसे fill करना है? Now how to fill the amount? Now two goodwill in the question we can see two goodwill. One goodwill is appearing. Goodwill appearing in the book is rupees 60,000 and Sangeeta retire and goodwill is valued 90,000. Two goodwills are there. So यहाँ पे कौन सा goodwill लेना है? We have to see that goodwill on the date of the retirement. We have to see the goodwill which is valued on the day of the retirement. So retirement के समय जो goodwill valuation हो रही है हमें वो वाली goodwill देखना है और क्वेश्चन में ये क्लियरली लिखा होगा कि goodwill valued on the date of retirement. In this question also it is written Sangeeta retire and goodwill is valued at 90,000. रिटायरमेंट के समय गुडविल जो थी 90,000 थी. जो एक और गुडविल है 60,000 गुडविल अपियरिंग इन द बुक. यहाँ पे रिटायरमेंट के बारे में कुछ भी नहीं लिखा है. ये लिखा कि गुडविल अपियरिंग इन द बुक 60,000. अगर हमें कौन सी गुडविल देखना है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट. सो एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट गुडविल वॉज 90,000. 90,000 गुडविल है. सो 90,000 इज फर्म्स गुडविल. 90,000 है फर्म्स गुडविल. Is 90,000 means this is the goodwill of the business. ये business की goodwill होगी 90,000 and from this goodwill ये नहीं distribute होगी. This is the firm's goodwill. ये goodwill distribute नहीं होगी. Only the share of the retiring partner will be distributed. जो partner retire हो रहा है उसका share distribute होगा. और हमने पहले क्वेश्चन में भी किया था ये फर्म्स की गुडविल है. यहाँ पे कौन रिटायर हो रहा है? संगीता इज रिटायरिंग. तो हमें संगीता का शेयर फाइंड करना है. संगीता शेयर्स in short I have written the name in the short. संगीता शेयर इज इक्वल टू 90,000 इंटू संगीता की रेशियो क्या है 2:3:5. दिस इज द रेशियो. ये संगीता सरोज एंड शांति. दिस वन इज द संगीता इज रेशियो 2/10. संगीता का शेयर हो गया 90,000. 90,000 फर्म की गुडविल थी. फर्म की गुडविल में से हमें संगीता का शेयर फाइंड करना है. तो 0 and 0 कैंसिल. 2 0s are 0, 2 0s are 0, 2 0s are 0, 2 9s are 18. 18,000. दिस वी हैव फाइंड द संगीता शेयर. हमें संगीता का शेयर मिल गया 18,000. ठीक है, ये समझ में आ गया. फर्म्स गुडविल थी 90,000. फर्म्स गुडविल विल नॉट बी डिस्ट्रीब्यूटेड. ओनली द शेयर ऑफ द रिटायरिंग पार्टनर विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड. सो फर्स्ट वी हैव कैलकुलेटेड द रिटायरिंग पार्टनर शेयर एंड संगीता हैज बीन रिटायर्ड. सो संगीता शेयर विल बी 90,000 इंटू 2/10 18,000. नाउ राइट 18,000 इन द फ्रंट ऑफ संगीता. संगीता के सामने 18,000 लिख देंगे एंड नाउ दिस 18,000 विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द रिमेनिंग पार्टनर्स इन द गेनिंग रेशियो. 18,000 दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा? गेनिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा. बट नाउ इन दिस क्वेश्चन गेनिंग रेशियो 1 is 0 and 1 is 4. एक तो 0 है. 0 मीन्स nil. nil मीन्स शी विल गेट नथिंग. उसको कुछ भी नहीं मिलेगा क्योंकि उसके शेयर में 0 आया है. तो बचा कौन? यहाँ पे शांति तो nil हो गया. बचा कौन? सरोज. सो द सरोज विल गेट होल 18,000. ये पूरा 18,000 है. ये इनको मिल जाएगा. ये समझ में आया? इनको शांति विल गेट नथिंग बिकॉज हिज शेयर वॉज 0. यहाँ पे 0 था, nil था. सो शी विल गेट नथिंग. यहाँ पे डैश कर दिया एंड द होल शेयर. अब यहाँ पे हमें क्या करना है? हमें 18,000 और जो सरोज का शेयर 4/20 ये नहीं करना है क्योंकि 4/20 फाइन नहीं करेंगे. जो 18,000 था द होल अमाउंट विल सरोज विल गेट. जो रिमेनिंग पार्टनर एक ही बचा है, जो एक बचा है तो वो पूरा उसी का होगा. ठीक है. सो 18,000 शी विल गेट द होल अमाउंट. ये समझ में आया? ये तो क्लियर हो गया. दिस वॉज अबाउट द गुडविल. नाउ वन मोर गुडविल इज गिवन. अब उसका क्या करेंगे? एक गुडविल और दी है. ठीक है. अब यहाँ पे नरेशन भी लिख देते हैं. बीइंग संगीता शेयर एडजस्टेड. बीइंग गुडविल एडजस्टेड. नाउ वन मोर गुडविल इज गिवन. ये तो हमें क्लियर हो गया. अब एक गुडविल और दी है तो क्या करना है? अगेन कमिंग टू द क्वेश्चन. संगीता सरोज एंड शांति आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन दिस रेशियो. गुडविल अपीयरिंग इन द बुक वाज ₹60,000. मीन्स दिस गुडविल वॉज बिफोर द रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर. ये रिटायरमेंट के पहले की गुडविल है. तो जब रिटायरमेंट के पहले की गुडविल किसकी होगी? 3 पार्टनर्स हैं तो तीनों की होगी. रिटायरमेंट के बाद जो था वो 90,000 थी बट रिटायरमेंट के पहले कितनी थी गुडविल? 60,000. तो ये 60,000 तीनों पार्टनर्स की होगी क्योंकि उस समय रिटायरमेंट नहीं हुआ था. ठीक है. जो 60,000 है दैट वाज ओल्ड गुडविल बिफोर द रिटायरमेंट. सो दिस गुडविल विल बी ऑफ द ऑल द पार्टनर्स. विल बी ऑफ ऑल द पार्टनर्स. ये तीनों पार्टनर्स की गुडविल होगी क्योंकि ये रिटायरमेंट के पहले की गुडविल है. तो अब इसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे?
अभी फिर से अगेन लिसन द रूल, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो रिसीव कौन करेगा, 3 पार्टनर्स हैं तो तीनों की गुडविल है तो तीनों रिसीव करेंगे, तो तीनों डेबिट हो जाएंगे। नेम्स आई एम राइटिंग इन शॉर्ट, संगीता's अकाउंट डेबिटेड, संगीता को भी मिलेगा। सरोज अकाउंट डेबिटेड, सरोज को भी मिलेगा। एंड शांति's अकाउंट डेबिटेड, तीनों को क्यों मिल रहा है, क्योंकि ये पुरानी गुडविल है, रिटायरमेंट के पहले की गुडविल है, तो ये तीनों की गुडविल होगी। ये समझ में आएगा, डेबिट द रिसीवर, ये तीनों डेबिट हो गए और यहाँ 2 में क्या आ जाएगा, 2 गुडविल, 2 गुडविल, दिस विल बी द एंट्री। ठीक है, अब पुरानी गुडविल कितनी है, राइट इन द फ्रंट ऑफ गुडविल 60,000 लिख दिया। अब ये 60,000 तीनों को मिलेगा, किस रेशो में मिलेगा, ओल्ड थिंग्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन द ओल्ड रेशो टू द ओल्ड पार्टनर्स। ये लाइन हमेशा याद रखना है, all things are distributed to the old partners in the old ratio. Gaining ratio is only calculated to distribute the goodwill at the time of retirement. जो retirement के समय goodwill होती है उसको calculate किया जाता है gaining ratio में, but every old things are distributed in the old ratio. So this is the old goodwill, 60,000 old goodwill है, and the old ratio is 2, 3 and 5. old ratio क्या है, 2, 3 and 5, मतलब 2/10, 3/10 and 5/10 में distribute होगा। This 60,000 will be distributed in 2/10, 3/10 and 5/10. इसको distribute करके the first one you will get 12,000, then 16,000, 18,000 and 30,000. ये गुडविल कैसे आया है, इसको 60,000 ओल्ड गुडविल के सामने लिख दिया और इसको डिस्ट्रीब्यूट किया, किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया, 2/10, 3/10 एंड 5/10। ओल्ड रेशियो में क्यों डिस्ट्रीब्यूट किया, बिकॉज दिस वाज द ओल्ड गुडविल। अब यहाँ नरेशन में क्या लिखना है, बीइंग एग्जिस्टिंग गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड, बीइंग एग्जिस्टिंग गुडविल रिटर्न, एग्जिस्टिंग मतलब जो पुरानी गुडविल थी, बीइंग एग्जिस्टिंग गुडविल रिटर्न ऑफ, being existing goodwill written off. So here 2 entries are done. अभी हमने यहाँ पे 2 एंट्रीज कर दी। फर्स्ट एंट्री तो हमें समझ में आ गई, जो रिटायर हो रहा है उसको 2 में लिखेंगे और बाकी डेबिट हो जाएंगे। ठीक है, और ये वाली एंट्री पुरानी गुडविल थी तो उसे डिस्ट्रीब्यूट करना था, तो पुरानी गुडविल तीनों को मिलेगी एंड 2 में गुडविल। नाउ दिस वन विल बी द फर्स्ट एंट्री, ये वाली फर्स्ट एंट्री होगी क्योंकि पहले ओल्ड गुडविल डिस्ट्रीब्यूट की जाती है, देन रिटायरमेंट वाली। So this will be the first entry and this will be the second entry. So here we complete question number 14 and hope you understood this question. If you have any doubt regarding this question, you can mention it in the comment section, and in the next video again we will solve some new questions. So till then, take care, bye bye.